Hello friends, welcome to Mansi MCQ GK. On this channel, I bring you static and current affairs content in MCQ forms which will be very useful in preparation of your exam. Friends, it takes a lot of time and energy in preparing these videos, so you are requested to subscribe, like and share my channel to encourage me. You can turn on the bell icon so that you can get information about my upcoming videos in advance. Thank you very much and let's start. Question number 1. Where was the second meeting of the India-Russia Commission on Emergency Management held? आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूस आयोग की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई? एंड द ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मुंबई. And the correct answer is Moscow. The meeting was held on August 28th, 2024. बढ़ते अगले क्वेश्चन पर. Which day is celebrated as National Sports Day in India? भारत में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस 25th अगस्त, 22nd अगस्त, 29th अगस्त एंड 23rd अगस्त. And the right answer is 29 August. National Sports Day in India is celebrated on August 29 to honor the legendary hockey player Major Dhyan Chand. It promotes awareness about the importance of sports and fitness in daily life. Various sporting events and activities are organized to inspire participation and recognize achievements in sports. Next question. Who has been recently appointed as the new Director General of the National Security Guard, NSG? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर मोनिका भारद्वाज, बी श्रीनिवासन, समीर शर्मा एंड आनंद सागर. एंड द राइट आंसर इज बी श्रीनिवासन. दोस्तों, बी श्रीनिवासन 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जो बिहार कैडर से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टू स्टेट्स हैव रिसेंटली अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण गमन पथ? हाल ही में किन दो राज्यों ने कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार और मध्य प्रदेश और राजस्थान. दोस्तों, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. द केजीपी यानी कृष्ण गमन पथ विल हाईलाइट कल्चरल एंड रिलीजियस साइट्स रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा. दिस विल स्टार्ट फ्रॉम मथुरा ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which country was the 17th World Wrestling Championship 2024 organized recently? हाल ही में 17वीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस देश में आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस है इजराइल, सीरिया, जॉर्डन या इराक. दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है जॉर्डन. It was played in Princess Sumaya bin Al Hassan Arena in Amman from August 19 to 25. Next question. Which state government has recently launched Chief Minister सुख शिक्षा योजना? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान. दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश. द चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना इज a welfare scheme launched by the Himachal Pradesh government to provide free education to orphaned children. It is aimed at providing financial assistance to widows, destitute women, divorced women, and disabled parents to support the education and well-being of their children.
यानी कि सुख शिक्षा योजना जो है, अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की योजना है। इसमें विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता, इन लोगों को इंक्लूड किया गया है, जो उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द सिल्वर मेडल इन द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024? किस देश ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक हासिल किया? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या मालदीव। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। The 2024 Asian Surfing Championship was held in Maldives. Japan won the gold medal in the team event while India secured the silver. Chinese Taipei and China finished third and fourth respectively. Next question. Which country recently launched its first reusable hybrid rocket Rumi-1? हाल में ही किस देश ने अपना पहला फिर से उपयोग किया जाने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या यूएसए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। भारत ने 24 अगस्त 2024 को अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इट इज डेवलप्ड बाय स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप। इस रॉकेट को चेन्नई के थिरुविदंथई के पास एक हाइड्रोलिक मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया। यह मील का पत्थर रीयूजेबल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति को उजागर करता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ministry has recently launched the National Medical Register NMR portal to promote healthcare? हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दिस NMR portal was launched on August 23 and this portal is an electronic database. Next question. Recently, which space organization has launched Tanager-1 satellite to track methane emission? हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए Tanager-1 उपग्रह लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं इसरो फ्रॉम इंडिया, CNSA फ्रॉम चाइना, JAXA फ्रॉम जापान या NASA फ्रॉम USA। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है नासा फ्रॉम USA। दोस्तों, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत का अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चाइना का है। JAXA जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एंड नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये USA का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently a South Indian Adivasi knowledge center called Kanu was launched. It is related to which state? हाल ही में कानू नामक एक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा। Kanu was inaugurated on August 25th. It aims to preserve and promote the history, culture and traditions of South Indian Adivasi communities. Next question. India has launched its first comprehensive survey of high-risk glacier lakes beginning with which state? भारत ने
उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है, इसकी शुरुआत किस राज्य से की गई है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू और कश्मीर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी SDMA and experts from the National Institute of Mountaineering and Adventure are conducting this survey. The effort focuses on Tawang and Dibaung Valley district of Arunachal Pradesh. Next question. Which ministry will organize the World Audiovisual and Entertainment Summit WAVES? कौन सा मंत्रालय वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स का आयोजन करेगा? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The Ministry of Information and Broadcasting is hosting the World Audio Visual and Entertainment Summit WAVES in Goa from November 20 to 24, यानी नवंबर 20 से 24 के बीच इसका आयोजन गोवा में होगा। This international event will spotlight the Indian media and entertainment industry, attracting global participants to explore opportunities and innovations in the sector, यानी इस क्षेत्र में अवसरों और नए तकनीक का पता लगाने के लिए वैश्विक प्रतिभागियों को आकर्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन इश्यूड वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड टू फंड अमेजन रिफॉरेस्टेशन? किस संगठन ने अमेजन रिफॉरेस्टेशन को फंड करने के लिए विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने $225 मिलियन का कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। India EU Regional Conference 2024 was held in which city? यानी भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, म्यूनिख या ब्रसेल्स। फ्रेंड्स, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली। The European Union EU and India's Ministry of External Affairs organized a regional conference in New Delhi on August 21st and 2nd. The event focused on emerging threats of online radicalization and collaborative efforts to counter terrorist exploitation of digital platforms, aiming to enhance global cybersecurity measures. यानी यह कार्यक्रम ऑनलाइन कट्टरपंथ के उभरते खतरों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के आतंकवादी शोषण का मुकाबला करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर केंद्रित था, जिसका उद्देश्य वैश्विक साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन एयरपोर्ट हैज रिसेंटली अचीव्ड द स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट? हाल में किस भारतीय हवाई अड्डे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाले हवाई अड्डे का दर्जा हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली या बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम इनॉग्रेटेड? प्रथम नीति निर्माताओं के मंच का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, पटना या कोलकाता।
Friends, the right answer is New Delhi. Sri Jagat Prakash Nadda inaugurated the first Policymakers Forum on 19th August. It was aimed to elevate India's position in the global pharmaceutical sector. Next question. Which state government has recently launched the Chief Minister Bal Paustik Ahar Yojana? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ये योजना स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को पौष्टिक आहार देने के लिए शुरू किया है। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 17 अगस्त 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया डेवलप्ड द अस्त्र इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल? भारत के किस संस्थान ने स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र विकसित की है? ऑप्शंस हैं HAL, DRDO, BHEL या BEL। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है DRDO। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BHEL यानी भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है, दरअसल PSUs हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली Ministry of Defense signed a contract with a company for 5 fleet support ships for Indian Navy. What is the name of that company? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 5 बेड़े के सहायक जहाजों के लिए एक कंपनी के साथ 19,000 करोड़ रुपए का अनुबंधन किया है। उस कंपनी का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या बॉम्बे डॉकयार्ड। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन अगस्त 25 साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विथ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL विशाखापट्टनम फॉर द एक्विजिशन ऑफ 5 फ्लीट सपोर्ट शिप FSS फॉर द इंडियन नेवी एट एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ₹19,000 करोड़। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आशा है इसमें कवर किए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, ज्ञानवर्धक लगे होंगे और इम्पोर्टेंट भी लगे होंगे। तो इस उम्मीद में कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे या शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो अगस्त महीने का लास्ट पार्ट होगा करंट अफेयर्स का। थैंक यू वेरी मच।